So, very good morning to all. Today's topic is employees relation. In this topic, we are going to cover the term what are the employee relations, why it is important for a particular organization to manage good relation with the employees. So, how these are helpful to the company as well as to the employees. So, let's start with the video. So first term is what is employee relation? An organization most important asset is its employees who work together and perform to achieve the goals and objectives of organization. Every individual share a certain relationship with his colleagues at the workplace. The relationship can be between anyone in the organization, between co-workers, between an employee and his superior, between two members in the management and so on. It is important that the employees share a healthy relationship with each other to deliver their best performance. सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है। कोई सेम रैंक पे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको हम कुलीग्स कहते हैं, कुछ उनके सीनियर्स होते हैं, कुछ सबॉर्डिनेट्स होते हैं। सो हर एक लेवल पे एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक तो हायरार्किकल चैनल जो है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो। दूसरा जो एम्प्लॉयज के रिलेशन है अगर वो आपस में अच्छे होंगे तभी वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। The employees must be comfortable with each other for healthy environment at work. It is prime duty of superiors and team leaders to discourage conflicts in the team and encourage a healthy relationship. So हमारे जो superiors हैं, जो सीनियर मेंबर्स हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने जूनियर्स के साथ कॉर्डियल रिलेशंस बना के चले। और अगर कोई टीम मेंबर्स भी हैं तो एज अ टीम लीडर जो एक्ट कर रहा है बंदा, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो आपस में एम्प्लॉयज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स ना होने दें। अगर कोई उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उन्हें टाइम टू टाइम रिजॉल्व किया जा सके। Observation says that a healthy relation among the employees goes a long way in motivating the employees and increasing their confidence and morale. So जैसे employees के relation strong बनेंगे उससे उनका काम करने का confidence भी increase होगा and they will feel motivated and free to work in a particular organization. One starts enjoying his office and does not take his work as a burden. He feels charged and fresh the whole day and takes each day at work as a new challenge. So अगर employees के आपस में relation अच्छे हैं तो वो अपने काम को enjoy करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से coordinate करेंगे, ठीक है, और healthy environment में वो काम करेंगे. This also helps in removing the stress between the employees. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज रिलेशन। बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं इसके, लाइक देर आर सेवरल इश्यूज ऑन विच इंडिविजुअल कैन नॉट टेक डिसीजन अलोन। कई ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें एक बंदा डिसाइड नहीं कर सकता, उसमें अगर आपस में एम्प्लॉयज में अच्छे रिलेशन है तभी वो कॉर्डियल तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। इट मेक्स देयर वर्क ईजी, आपस में अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इट द ऑर्गेनाइजेशन बिकम अ हैप्पी प्लेस टू वर्क, everyone will feel motivated to work in organization like that. हेल्दी एम्प्लॉय रिलेशन ऑल्सो डिस्करेज कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे अगर हेल्दी इन्वायरमेंट होगा। हेल्दी एम्प्लॉय रिलेशन रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म। लोग अपनी जॉब से ज़्यादातर एब्सेंट नहीं रहेंगे अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा वर्क प्लेस का। इट इज़ ईजी टू शेयर अ वार्म रिलेशन विद द फेलो वर्कर्स बिकॉज वी नेवर नो व्हेन वी नीड देम। So it helps in improving employee relation. It helps in involving all the team members. It encourages the individuals to share their work with each other. It helps in assigning them tasks and ask all the team members to contribute equally. So it encourage effective communication. कोई communication gap नहीं आएगा employees के बीच में, proper transparency होगी, ठीक है, उनके काम में। और they can enjoy at some particular occasions, like they can arrange birthday parties, Christmas parties, New Year parties, and so on. So next is employees relation management. Employees relation management refers to managing the relation between the various employees in an organization. The relationship can be between employee and the employer as well as between the employees. ठीक है, सो हर एक लेवल पे एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन बना के रखना जरूरी है, चाहे वो एम्प्लॉयज का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन हो या सुपीरियर सुपीरियर के साथ या subordinate के साथ हो। सो इट इज एन आर्ट, ठीक है, एक मैनेजर के लिए, एक लीडर के लिए इट इज एन आर्ट
टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, उसमें ये स्किल्स होने चाहिए कि टाइम टू टाइम अपनी टीम को एज अ ग्रुप यूज करे और उनको मोटिवेट करे ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स टाइम पे अचीव कर सकें। Next is activities which are imperative for healthy employee relationship management. So अगर आप अपने एम्प्लॉयज के रिलेशन को मैनेज करना है तो क्या क्या एक्टिविटीज आप फॉलो कर सकते हो। देयर फर्स्ट इज देयर मस्ट बी ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन का दैट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट और जितना हो सके इजी कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। कोई लेंथी कम्युनिकेशन सिस्टम अगर होगा तो it will create problems. Next is encourage group activities at workplace, assign challenging work to team members. The concept of workstation and cubiles must be promoted rather than closed cabins. ठीक है, सो हमने उनको प्रमोट करना है कि rather than इंडिविजुअल काम करने की बजाय वो एज अ ग्रुप एज अ टीम मेंबर काम करें। द एम्प्लॉयज मस्ट बी मोटिवेटेड टू अवॉइड पॉलिटिक्स एंड blame games at work. The superiors or team leader must not act pricey or ट्राई टू डोमिनेट देयर टीम मेंबर। मीन्स जो हमारा सुपीरियर है वो बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो हर एक को उसके काम के अकॉर्डिंगली फेवर करे, ऐसा जो है वो हमारा टीम लीडर होना चाहिए। नेक्स्ट इज रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन एम्प्लॉय रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एम्प्लॉयज के रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए। द कम्युनिकेशन हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि जो आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड प्रिसाइज। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयज मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। जो उनकी जॉब एक्सपेक्टेशंस, जॉब स्पेसिफिकेशन उनको क्लियरली पता होनी चाहिए। Don't change statements quite often. Think twice before speak. So these are the key roles which a communication play in managing the relationship with employees. नेक्स्ट इज रोल ऑफ मैनेजर्स इन एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब एक मैनेजर का क्या रोल है। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट टीम लीडर अंडरस्टैंड हिज टीम मेंबर्स वेल। सबसे पहले उसे हर एक अपने टीम मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। द टीम लीडर शुड एक्ट एज अ रोल मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट इज द सुपीरियर मस्ट नॉट एक्ट प्राइसी और शुड ऑलवेज बी accessible to his employees. वो biased नहीं होना चाहिए और he should be available for his employees for handling their complaints, for handling their queries at all the time. The manager must ensure that all important communication should take place in open forum for everyone to get a common picture. A team leader, it is one's prime responsibility to encourage healthy competition. Competition करे करवाए employees में, लेकिन it should be healthy competition. So this was the topic for today. So next time we will meet with the new topic. Thank you.